Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Atequrrahman, VTC teacher. I very welcome you all to this RMC Gym VTC online video session. And students, as you're looking on your screen, so you maybe realize that which topic today we are going to learn. Uh, yes, definitely. We are going to today learning about the time, the measuring time in standard fifth in मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. सो आज जैसे कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घड़ी नज़र आ रही है आपको, तो आप समझ गए होंगे कि आज हम जो टॉपिक के बारे में आज आपको मालूमात देने वाले हैं उसका ताल्लुक घड़ी से है, यानी वक्त से है, यानी टाइम से है. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वक्त की पैमाइश किस तरह से की जाती है, किस तरह से हम वक्त अगर दिया हुआ होता है तो उस वक्त की जमा तफरीक किस तरह से करते हैं, या कितना वक्त लगा है किसी काम को करने के लिए, वो सब मालूमात आज के सेशन में हम यहाँ पर हासिल करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हम घड़ी को समझेंगे यहाँ पर, ठीक है. तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टाइम शोन इन ईच क्लॉक in the box given below. So you will see here, would you please tell me what is the time in this clock? Okay, so you may answer like this, that 25 minutes past to 2. Okay, and what is the time in this clock? So in this clock the time is 50 minutes past 7. And what is the time in this clock? So you will see that 5 minutes past 8. What is the time in this clock? So the time you're looking in this clock is 40 minutes past 4. So इस तरह से हम देखते हैं कि जो घड़ी होती है उस घड़ी को देखकर हम टाइम किस तरह से बोल सकते हैं ना. तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें घड़ी देखनी आती है, जिन्हें टाइम समझता है घड़ी को देखकर, है ना. यू आर इन स्टैंडर्ड फिफ्थ, सो यहाँ पर स्टैंडर्ड फिफ्थ तक पहुँचने तक के बहुत सारे बच्चे घड़ी अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना. सो 40 minutes past 4 is here. So you will say here, draw the hands of the clock to show the time given in the box. So we are supposed to draw the hands. So one is a short hand and one is a long hand and another is a second. We are using that hand for second. So here we are supposed to mark first only for the short hand and long hands. So short hand we are using that hand for hours, and the long hand we are using for minutes. So here is a time, and that time is showing us 4:30. So here will be the small hand on between 4 and 5, and long hand will be on 6. So you'll see here that this time is 4:30. Now quarter past 9 is the time we are supposed to show in this clock. So quarter past 9. So you will see here that little big upper side to the 9, small hand, and the long hand should be on direct on 3. So it is the time for quarter past 9. Okay, like this.
and the another one is quarter to 5 here. So quarter to 5 means we are supposed to make a small hand to near to 5, and the long hands will be up to 9. Okay, so the time here is quarter to 5 here. And you see here the fourth one is on your screen, and that is 20 minutes past 11. Okay, so you will see here 11 past, so we are supposed to make a small hand marking towards the 11, and 20 means we are supposed to make the mark on, means long hand should be on 4. So like this you will see the time here, 4:30, then quarter past 9, then quarter to 5, then 20 past 11. So here is the, we just started it from this exercise practice at 43, and thereafter we are moving for the another question, and that is on your screen. If a bus that travels Nashik at 5 o'clock in the morning and reaches Pune at the same day at 10:30 in the morning, how long does the journey take? यहाँ पर क्या दिया है question? Question is given here that कि नासिक से सुबह 5 बजे रवाना होने वाली बस इसी दिन सुबह 10:30 बजे पुणे पहुंचती है, तो इस सफ़र में इसे कितना वक्त लगता है? ओके, नासिक से सुबह 5 बजे रवाना होने वाली बस इसी दिन सुबह 10:30 बजे पुणे पहुंचती है, तो इस सफ़र में कितना वक्त लगता है? ओके, so you see here a bus that leaves Nashik at 5 o'clock in the morning reaches Pune that same day at 10:30 in the morning. So you will see that 10:30 means 10 o'clock 30 minutes. Okay, so morning 5 to 10 period is 10 hours minus 5 hours, so it will be 5 and 30 minutes. Okay, यहाँ पर अब अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि बस जो है तो नासिक से सुबह 10 बजे रवाना होती है और इसी दिन जो है तो सुबह 10:30 बजे पुणे पहुंचती है। इसका मतलब है कि 10:30 का मतलब क्या हुआ, 10:30 है ना। तो सुबह 5 बजे से 10 बजे तक का अरसा कितना हो गया, तो 10 - 5 किया तो 5 रहेगा, है ना। तो 5 घंटे हो गए और आगे के 30 मिनट इस तरह से, है ना। तो 5 hours and 30 minutes. So therefore the total time is 5 hours and 30 minutes is equal to 5 hours and 30 minutes. Okay, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर कि सफ़र में 5.5 घंटे लगते हैं। ओके, कितना घंटा लगता है? 5.5 घंटे। ओके, so the next question is on your screen. A play that was to start at 9:15 at night was delayed by half an hour because of a power outage. What time did the play start? यहाँ पर देखिए सवाल दिया है कि रात को 9:15 शुरू होने वाला ड्रामा बिजली चले जाने की वजह से आधा घंटा देरी से शुरू हुआ, तो वो ड्रामा कितने बजे शुरू हुआ ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, so you see here that the 9:15 means 9 hours and 15 minutes. Okay, क्या हुआ? 9:15 का मतलब क्या हुआ? 9:15 यानी 9 घंटे और 15 मिनट। ओके, और the play was delayed by half an hour means 20 minutes.
half an hour means 30 minutes. Okay, half an hour means 30 minutes. So the play was delayed by half an hour means 30 minutes. अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि ड्रामा आधा घंटा यानी 30 मिनट देर से शुरू हुआ है. ओके, सो the time play started as 9:15. The play The time play started 9 hours 15 minutes plus 30 minutes. So यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए ड्रामे के शुरू होने का वक्त क्या हुआ, अब 9 घंटे और 15 मिनट, और उसमें हम जमा कितना करेंगे, उसमें हम जमा करेंगे 30 मिनट, तो कितना हो गया वो 9 घंटे 45 मिनट, है ना. So the time play started at 9 hours 15 minutes plus 30 minutes. Okay, so you see here that 9 hours 45 minutes. इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि the play started at 45 minutes past 9. इसलिए हम देखेंगे कि ड्रामा जो है तो 9:45 को यानी 9:45 जो है तो शुरू हुआ. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है. ओके, नाउ विल सी द अनदर क्वेश्चन. यहाँ पर देख रहे हैं हम कि मुंबई से रात को 10:15 पर रवाना होने वाली रेलगाड़ी, if a train leaves Mumbai at 10:15 at night and reaches Nagpur at 1:40 the next afternoon, how long does the journey take? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुंबई से रात को 10:15 पर रवाना होने वाली रेलगाड़ी दूसरे दिन दोपहर 1:40 पर नागपुर पहुंचती है, तो इस सफ़र में कितना वक्त लगा है इसे. ओके, सो रात के द टाइम फ्रॉम 10:15 at night to 10:15 in the morning next day will be 12 hours. अगर आप देख रहे हैं कि रात के 10:15 से दूसरे दिन 10:15 का वक्फा अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा, वो 12 घंटे का. ओके, तो 12 घंटे का वक्त हो गया ये. फिर उसके बाद का वक्त कितना बाकी है. सो द टाइम फ्रॉम 10:15 in the morning to 1:15 in the afternoon, and this will be 3 hours. कितना हुआ ये 3 घंटे हो गया, है ना. कितना हो गया, ये 3 घंटे हो गया है. सो द टाइम फ्रॉम 1:15 to 1:40 is equal to 40 minus 15 minutes is equal to 25 minutes. अगर हम देख रहे हैं कि सुबह 10:15 से लेकर 1:15 तक का वक्त देख रहे हैं तो 3 घंटे हो गया. ठीक है, तो 15 मिनट से आगे 40 मिनट तक का वक्फा कितना हो गया, तो 40 minus 15 is equal to 25 minutes हो गया है. ठीक है, so you will see here that the total time 12 hours plus 3 hours plus 25 minutes is equal to 15 hours 25 minutes. अगर हम देखेंगे कि कुल जो है तो सफ़र में लगा हुआ वक्त कितना है, तो वो हमें मिलेगा यहाँ पर 12 घंटे जमा 3 घंटे जमा 25 मिनट, यानी कुल कितना वक्त हो गया, कुल वक्त हो गया ये 15 घंटे और 25 मिनट. ठीक है, therefore the journey takes 15 hours 25 minutes. इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि इस सफ़र में जो है तो 15 घंटे और 25 मिनट लगे हैं. इस तरह से. ओके, like this we can answer the questions. So here students we completed the 43 practice set, and now we are going to learn about the second. यहाँ पर हमें देखना है बच्चों कि सेकंड का जो यहाँ पर क्लॉक में हम सेकंड को कैसे एनालाइज करते हैं उसे हमें यहाँ पर पढ़ना है, समझना है. ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं in the clock there is another hand, and then the hours hand and the minute hand. यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने की घड़ी में, ठीक है, यहाँ पर एक घूमता हुआ कांटा आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो ये घड़ी में आप घंटा
सुई, है ना, और मिनट सुई के अलावा एक और बारीक और लंबी सुई हमें नज़र आ रही है, ठीक है। इस सुई को हम सेकंड सुई कहते हैं, है ना। सो यू विल से हियर दैट दिस वन इज अ मिनट एंड दिस वन यू विल से आवर हैंड, ठीक है। क्या ये आवर हैंड है, ओके, दिस वन। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है तो मिनट हैंड है, ये क्या है, मिनट हैंड है, ओके। सो एंड this is called the second hand. This one you will say, this one which is running continuously, it is a second hand, okay. तो यहाँ पर it moves swiftly, you see here how it moving very swiftly, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 second is a very small unit to measure time less than a minute. हम देखते हैं कि 1 मिनट से भी कम वक्त को नापने के लिए छोटी इकाई जो है तो सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सेकंड का। सो द फेस ऑफ द क्लॉक इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 60 equal parts. When the second hand moves one part, it takes 1 second. यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो घड़ी जो है तो कंटिन्यू घूम रही है ना, तो आप देख रहे हैं एक एक सेकंड पर वो जो है तो टर्न हो रहा है, ठीक है। रेड कलर का जो सुई है वो एक एक सेकंड पे टर्न हो रहा है, दैट इज द सेकंड, ओके। तो आप देखेंगे कि 1 मिनट से भी कम वक्त को नापने के लिए छोटी इकाई जो है तो सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द सेकंड, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं द फेस ऑफ द क्लॉक इज अ सर्कल, ठीक है। किस तरह से क्लॉक नज़र आ रही है, ये देखो आप, या ये क्लॉक को देखो आप। तो कोई भी क्लॉक अगर हम देखते हैं तो वो सब राउंड शेप में होती है मोस्टली, है ना। तो डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, व्हेन द सेकंड हैंड मूव्स वन पार्ट इट टेक्स 1 सेकंड। व्हेन द सेकंड हैंड कंप्लीट्स द वन राउंड ऑफ द क्लॉक फेस, the minute hand in the same time moves one place, which means that 1 minute is over. अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जैसे ही जो है तो ये काटा 12 पर गुजरता है, यानी 1 मिनट ये कंप्लीट करता है, 12 से होते हुए दोबारा 12 पर आता है, तो यहाँ पर हल्की सी मूवमेंट जो है तो यहाँ पर होती है, किस में, मिनट के कांटे में, ओके। तो हम देखते हैं कि घड़ी की तबक पर पूरे दायरे के जो है तो 60 मसावी हिस्से किए हुए होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ना 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से 12 तक है ना। तो इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट किए हुए है ना, ये पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो एक एक में जो है तो 5-5 यहाँ पर आपको फर्क मिलेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो आप अगर कुल मार्किंग इसमें देखेंगे तो आपको टोटल जो है तो 60 जो है तो मार्किंग यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। ये एक एक मिनट की जो है तो एक एक मार्किंग होती है, याद रखिए इसे, आपने देखा होगा बारहा। सो आप देखेंगे कि घड़ी के तबाक पर पूरे दायरे के जो है तो 60 मसावी हिस्से किए हुए होते हैं, और सेकंड सुई जब एक चक्कर पूरा करती है तब मिनट सुई एक खाने आगे जाती है, यानी 1 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड सुई जब एक खाना आगे जाती है तब सेकंड होता है, इस तरह से, ठीक है। याद रखना है बच्चों हमें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब कब्ल नीम रोज़ और बाद नीम रोज़ किसे कहते हैं, ठीक है। सो द यूनिट्स ऑफ द टाइम, सो यू विल सी हियर द 60 यूनिट्स, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आप देखते हैं जैसे हमने पिछली घड़ी में देखा है, ठीक है। इसी तरह से 60 मिनट्स देखिए यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट हो रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर कांटा जो है तो आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है, यानी कि 1 घंटा जो है तो मुकम्मल हो रहा है, ठीक है। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर्स एंड 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे एंड 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक एंड 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं एंड
मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियम, यानी कब्ल नीम रोज और बाद नीम रोज। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर इस घड़ी में, तो आपको यहाँ पर जो है तो पीएम नज़र आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 12 के बाद में एएम स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर ये 12 आवर्स हुआ, देखो आपको तारे नज़र आ रहे हैं, डार्क हिस्सा हो गया इस घड़ी का यहाँ पर, यानी ये रात का वक्त है। ओके, यहाँ पे तारे भी नज़र आ रहे हैं आपको, है ना। तो ये देखेंगे आपने यहाँ पर कि ये एएम शुरू हो गया है ना, रात 12 बजे से सुबह 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, स्कूल में आ चुके हैं आप यहाँ पर 10, 11 और ये 12, आपकी जो स्कूल का छूटने का वक्त हो गया 12 बजे के बाद 1 बजे, 2, 3, यहाँ पर आप देखेंगे पीएम शुरू हो गया है ना। सो हेयर यू विल सी द पीएम एंड एएम। ठीक है, तो अब ये रात का वक्त शुरू हो गया है 7 बजे के बाद से, लेकिन रात के 12 बजे से जो है तो हम देखते हैं कि हम जो है तो एएम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एएम। देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस मार्क पे अभी देखिए सुबह का वक्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पर सूरज निकल गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर समझते हैं कि एंट मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम जो है तो क्या होता है, एएम क्या होता है, पीएम क्या होता है, वो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कब्ल नीम रोज और बाद नीम रोज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ आपको। द टाइम बिफोर 12 नून इज स्टेटेड एज एंटे मेरिडियम यानी एएम, and the time after 12 noon is stated as post meridiem। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टाइम होता है घड़ी में, यानी 12 घंटे वाली घड़ी में, तो दोपहर के 12 बजे को हम जो है तो नीम रोज़ कहते हैं। ओके, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के अरसे को बाद नीम रोज़ यानी पीएम कहते हैं। याद रखिए इसे। ठीक है, इसी तरह से इससे कब्ल के यानी कि दोपहर के 12 बजे से कब्ल के वक्त को हम कब्ल नीम रोज़ यानी एएम कहते हैं। ओके, तो एएम क्या हो गया, पीएम क्या हो गया, ये अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग इज कॉल्ड 12 आवर्स क्लॉक। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि 10 a.m. means 10 in the morning and 10 p.m. means 10 at night। ओके, 10 a.m. का मतलब क्या होता है, सुबह के 10 बजे। इसी तरह से 10 p.m. का मतलब क्या होता है, रात के 10 बजे। ओके, तो अब आपकी अच्छी तरह से ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी इस घड़ी को देखने के बाद में कि एएम क्या है, पीएम क्या है, पीएम कब होता है, एएम क्या होता है। बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत आसानी से आप इससे एएम पीएम समझ जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस घड़ी को तो। ओके, ठीक है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 24 आवर्स मेजरिंग ऑफ टाइम। सो द 24 आवर्स क्लॉक यानी वक्त की जो है तो 24 घंटे वाली पैमाइश के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन में, इस तरह की घड़ी आप रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, राइट। रेलवे स्टेशन पे आपको इस तरह की घड़ी नज़र आती है। और भी मस्जिद में आप देखते हैं इस तरह की घड़ी आपको दिखाई देती है ना। और भी कहीं ऐसी बड़ी जगह पर जहाँ जाते हैं आप, वहाँ पर आपको इस तरह की घड़ी नज़र आती है ना। सो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। 12 noon divides the day into 2 times zone AM and PM। हम ये जानते हैं कि एक दिन में जो है तो 24 घंटे होते हैं। ठीक है, इस 24 घंटे के अरसे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक कब्ल नीम रोज़ हम देखते हैं AM एंड एक बाद नीम रोज़ यानी PM हम यहाँ पर देखते हैं ना। तो the 24 hours clock is used to avoid using the term dividing the day into ant meridiem and post meridiem। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये समझने के लिए कि वक्त कब्ल नीम रोज़ और या बाद नीम रोज़ है, वक्त की पैमाइश घंटे वाली पैमाइश का तरीका जो है तो फ़ायदेमंद होता है ना। कभी कभी AM PM में जो है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है ना। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि मोस्टली जो
ट्रेन वगैरह की जर्नी है उसमें जो है तो आपको जो टाइम बताया जाता है वो टाइम कौन सा होता है, यही 24 आवर्स का टाइम ही उसमें शो किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर AM PM नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको 24 आवर्स की घड़ी भी समझना ज़रूरी है। ओके, and this method, instead of starting again from 1 to 3, after 12 we continue with 13 14 15 like this. ओके, इस तरीके में क्या होता है, दोपहर के 12 बजे के बाद जैसे आम घड़ियों में हम क्या देखते हैं, 1 2 3 वापस से बजते हैं ना, तो हम इसे 1 2 3 गिनने की बजाय क्या गिनेंगे, 13 14 15 इस तरह से हमें गिनना होता है। राइट, याद रखिए इसे। तो दिस मेथड is used in timetable for train, buses, planes. In a 24 hours digital watch, as you are looking on your screen, time is shown only in the form of number. यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो है तो आपको लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड नज़र नहीं आ रहा होगा, या जिसे हमने अभी आपको आवर हैंड और मिनट हैंड और सेकंड हैंड जैसे बताए हैं, इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ओनली क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर डिजिटल वॉच ही नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, मज़ीद हम यहाँ पर आगे बात करेंगे इसके बारे में कि इस तरह की जो घड़ियाँ होती है नॉर्मली जो इंटरनेशनल टाइम शो करती है, इंटरनेशनल टाइम भी इसे कहा जाता है क्योंकि 24 घंटे सब जगह पर एक ही टाइम रहेगा, है ना, सबको समझने के लिए आसान होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए, तो ये हमारे लिए आसान होता है 24 आवर्स को शो करना, है ना। तो हम देखते हैं कि रेल, बस, इसी तरह से हवाई जहाज़ के टाइम टेबल में वक्त की पैमाइश या वक्त की जो है तो 24 घंटे वाली पैमाइश का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 24 घंटे वाली डिजिटल घड़ी में वक्त जो है तो हिस्सों में दिखाया जाता है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड के बारे में और भी थोड़ा सा हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं। दिस क्लॉक शोइंग 5 minutes past 3, we know this because of the position of the hour and the minutes hand. There is another hand in the picture, okay, called the second hand. This hand moves swiftly. The second hand is a very small unit used to measuring time less than a minute. Okay, so the face of a clock is a circle divided into 60 equal parts. When the second hand moves one part, it takes 1 second. When it completes one round of the clock face, it moves across all 60 parts. This takes 60 seconds. In the same time, the minute hand moves one place, which means that 1 minute is over. Okay, it means that 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, तो यहाँ पर आपको बच्चों ये याद रखना है कि 1 minute is equal to 60 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमने रिपीटेडली आपको सेकंड की इंफॉर्मेशन दी है, सेकंड हैंड के बारे में आपको बताया है ताकि आपके जहन में ये महफूज हो जाए। ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू study the time in 12 hours clock system is written in 24-hour clock system. यहाँ पर हम एक ऐसी घड़ी देखते हैं, एक ऐसे टाइम का एनालाइज करते हैं, एक ऐसे टाइम को जिसमें हम देखेंगे कि बाज़ औक़ात जो है तो वक्त की 24 घंटे की वाली पैमाइश किस तरह की जाती है, उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर जैसे हम देखें 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटे वाली घड़ी है तो उसमें क्या फ़र्क होता है उसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पर हमने 12 घंटे वाला टाइम रखा है और राइट हैंड साइड में हमने 24 घंटे वाला टाइम रखा है। तो सेम टाइम हम कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इफ़ इन 12 hour clock there is a 8:10 p.m. this time will show in 24 hours clock is 20:10. Okay, there is no AM PM in 24 hour
clock. Okay, in 12-hour clock you will see here 5:25 a.m. and that time in 24-hour clock will be 5:25. In 12 hours 6:55 p.m. is here. In 12-hour clock you will see the time will 18:55 minutes. Okay, thereafter you will see if there is a 12 hour in 24-hour clock, it will be 12 noon. In 12-hour clock. Okay, if there is 12 midnight in a 12 clock, you will see that it will be 0 0 0 0 means 24 o'clock in 24-hour clock. Okay, so like this the time will measure in the 24-hour clock. Now we are going to observe more, means particularly we are doing the 44 exercise, and here is a question from this practice set 44, and question is that the time below is given by 12-hour clock, write the same by 24-hour clock. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 घंटे वाली घड़ी का वक्त दिया गया है, इस वक्त को 24 घंटे वाली घड़ी में कितना दिखाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 30 मिनट्स पास 10 इन द मॉर्निंग। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सुबह जो है, तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं आपके कब्ल नीम रोज़ 10:30 है। ओके, 30 past 10 in the morning, so you will see here that will be 10:30. Okay, thereafter if the 10 minutes pass 8 in the morning, अगर हम देख रहे हैं कब्ल नीम रोज़ अगर 8:10 का टाइम है, so that will be 8:10. Okay, thereafter if the time is 20 minutes past 1 in the afternoon, that will be 13:20. Okay, if the time is 40 minutes past 5 in the evening, this time will show 17:40 like this. Okay, so this is the clock for 24 hours which will show you time in this manner. Okay, now we will move for the next question, and that is the match the following. So there is a 12-hour clock, and here you are observing the clock with the 24 hours and 12-hour clock. Okay, so यहाँ पर आप वक्त की जो है तो 12 घंटे वाली पैमाइश और वक्त की 24 घंटे वाली पैमाइश का मुशाहिदा कर रहे हैं। इससे आपको यहाँ पर देखना है और सही जोड़ी लगाना है। ओके, सो हेयर इज 9:10 a.m. so you will see here that 9:10 a.m. will be 9:10. Thereafter you will see here the next one is 2:10 p.m. means 14:10. Okay, thereafter 5:25 p.m. means 5:25 p.m. is there. So 5:25 p.m. means 17, it would be 17 actually. 17:25 p.m. should be there. If there is some mistake is here, you will see here that so if the time is 5:25 p.m. it would be 17:25. Okay, it would be 17:25. Okay, and if the time is 11:10 p.m.
it would be 13, it would be 13 10. Okay, and last you will see here that 7:25 a.m. so it would be this one, 7:25. Okay, so here is the right answer for this one, 7:25. Okay, so just ये जो हमने यहाँ पर 5:25 PM का यहाँ लगाया था, इसे आपको नहीं समझना है. ओके, इट इज़ द राइट आंसर है 17:25. ओके, for 5:25. Okay, so like this we can mark the right question and we can match the right question here, right answer here with the question. So hope students that you will understand this all exercise. And तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. एंड यहाँ पर उम्मीद करते हैं बच्चों कि जो भी यहाँ पर हमने आपको समझाया है या आपने आप अच्छी तरह से समझा है. सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और कोशिश कीजिए अपने तौर पर इसे हल करने के लिए. ओके, चलिए, अस्सलाम वालेकुम.